استقبال ہے آپ تمام سامعین و حاضرین کا آل انڈیا ریڈیو کی آج کی اردو سروس کی نشریات میں. میں ہوں شمیم عثمانی. آداب قبول فرمائیں. دوستو، زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے گیو اینڈ ٹیک. جو آپ دیں گے وہ آپ کو واپس ملے گا. قدرت کا اصول ہے، آپ محبتیں بانٹیں گے محبتیں ملیں گی، آپ نفرتیں بانٹیں گے تو نفرتیں ملیں گی. آپ دوسروں کو وقت دیں گے تو لوگ آپ کو وقت دیں گے. آپ دوسروں کو سنیں گے تو لوگ آپ کو سننا پسند کریں گے. زندگی کا بنیادی اصول ہے یہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھے خیالات ماحول میں پھیلائیے، آپ کو اچھے خیالات ہی دیکھنے اور سننے کو ملیں گے. جب آپ محبتیں پھیلاتے ہیں تو چاروں طرف آپ کی محبتیں ہی محبتیں نظر آتی ہیں. اس لیے دوستو یاد رکھیے کہ محبتیں عام کیجیے، پازیٹیونیس لائیے، مثبت سوچ عام کیجیے، لوگوں کے دلوں سے ڈر اور خوف کو دور بھگائیے تاکہ وہ آپ کے نزدیک آئیں، آپ سے ملنا پسند کریں اور ایک بہترین اور خوشگوار ماحول ہمارے آس پاس قائم ہو سکے، جس کی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے. آئیے فی الحال تو ایک نظر ڈالتے ہیں خبروں کی سرخیوں پر سبیحہ فضل کے ساتھ. تمام سننے والوں کو سبیحہ کا پرخلوص آداب. السلام علیکم، نمستے. کیسے ہیں مزاج آپ سب کے؟ میں بہت اچھی ہوں، امید کرتی ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے. ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. کسی شاعر نے یہ کہا تھا، اور مجھے یہ اس لیے یاد آیا کہ ایک مدت سے آپ لوگوں کے نام میسیجز میں اور خط میں نہیں پڑے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھول گئے ہوں آپ کو. بالکل بھی نہیں. میں اگر اپنی بات کروں نا سامعین، تو سچی بتا رہی ہوں، بالکل خدا جھوٹ نہ بلوائے، کہ اگر بہت گہری نیند میں سو رہی ہوں اور اس گہری نیند سے اچانک مجھے کوئی جگا کر یہ پوچھے کہ بتاؤ جمشید پور سے کس لسنر کا میسج آتا ہے، تو میں فٹ سے بتا دوں گی کہ کس کا آتا ہے. یا پھر کوئی پوچھے کہ مدھیہ پردیش سے کس کے میسیجز آتے ہیں، جلدی بتائیے. جھارکھنڈ سے کون میسج کرتا ہے، اور پنجاب سے کس کا میسج آتا ہے. غرض یہ کہ مہاراشٹر کے کون ہیں، گجرات کے کون ہیں، پاکستان کے کون ہیں، بہاول نگر سے کون ہے، سعودی عربیہ سے کون ہے، یو ایس اے سے کون ہے، سارے مجھے بالکل ایسے یاد ہیں نام، ود ان کی جگہ کا نام، شہر کا نام، کہ گویا روز کا ہی رابطہ ہو. حالانکہ یہ جو حالات فی الحال ہیں ان میں ابھی ہمارے فرمائشی پروگرام موقوف ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے امید ہے کہ جلد ہی ہم سبھی لوگ اسی پرانی ڈگر پر لوٹیں گے. زندگی اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ ایک بار پھر سے رواں دواں ہوگی. آپ سے باتیں ہوا کریں گی، آپ کے خطوں کے ذریعے بھی، آپ کے میسیجز کے ذریعے بھی انشاءاللہ. لیکن میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیسا ایک عجب رشتہ ہے کہ کبھی زیادہ تر جو لوگ ہیں 95% لگ بھگ لسنرز، جنہیں ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن صرف آوازوں کے ذریعے ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے، میسیجز کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، کہ آپ سب کے نام کہ کون کہاں کا لسنر ہے، آپ جگہ کا نام بتا دیجئے. ایک بار ایسا ہوا بھی تھا، کچھ لسنرز آئے تھے آکاشوانی میں ملنے، تو ملاقات ہوئی تو بڑا مزہ میں نے کیا تھا. وہ باقاعدہ پرمیشن لے کے آئے تھے سبھی لوگ، کہ انہوں نے جگہ کا نام بتایا تو میں نے لسنر کا نام بتایا، اور کسی لسنر نے اپنا نام بتایا تو میں نے جھٹ سے ان کا بتایا کہ یہاں سے میسیج یا خط آتا ہے، آپ کا جگہ کا نام بتایا. تو سب نے اتنا انجوائے کیا، مجھے بھی اچھا لگا. خیر، اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی پھر سے زندگی کو تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ رواں دواں کرے گا. فی الحال تو نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم سرخیوں پر. وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان خود اپنی اور دنیا کی معیشت کی جلا کے لیے اصلاحات کے لیے ہے تیار. جناب مودی نے مدھیہ پردیش کے ریوا میں 750 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے پروجیکٹ کا کیا افتتاح. وزارت صحت نے کہا کہ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یابی کی شرح اس وقت 62% سے زیادہ. آج صبح 9 بجے تک کووڈ-19 کے 4,95,516 مریض ہو چکے تھے شفایاب. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,83,659 لوگوں کی ہوئی کورونا وائرس کی جانچ.
वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस का अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दरमियान अमेरिका ने चीन के शिनजियांग पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो के कुछ अराकीन पर आयद की पाबंदी और चीन ने अपने शहरियों को एक ऐसे नमूनिया के बारे में मुतनब्बे किया है जो कोविड-19 से भी ज्यादा मुहलिक है। ये नामालूम निमोनिया कजाकिस्तान में पैदा हुआ है, जिससे 6 महीने में 1772 अफराद हलाक हो चुके हैं। तो ये थी अब तक की अहम खबरें। खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से, हर बला से। चलिए अब डॉक्टर की सलाह भी देखते चलें, क्या फरमाते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हामिद अशरफ है और मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज़ काम करता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। और मैं आप लोगों से आज डायबिटीज़ और कोविड-19 के बारे में कुछ अपने ख्यालात रखूँगा। उसमें कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जैसे कि शुगर वाले मरीज़ों को कितना ख़तरा है इस बीमारी से, उसमें क्या क्या परहेज़ करना चाहिए, दवाइयाँ कैसे खानी चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जो है हम लोग गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ये है कि ये जो बीमारी कोविड-19 ये एक वबा है और सारी दुनिया में ये फैल चुकी है और अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है, फैलती जा रही है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इससे बचने के तदबीर जो हमें बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करें और जो हमारे हेल्थ अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट जो हमें मशवरा दे रही है, जो सलाह दे रही है, उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करें ताकि इस बीमारी से हम अपने आप को भी बचाए रखें और अपने सोसाइटी को और अपने मुल्क को भी इससे बचाएं। इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कोविड-19 होने का ख़तरा डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को ज़्यादा होता है। तो इसका जवाब ये है कि अब तक जो एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं मुख्तलिफ ममालिक से, वो ये इस तरफ इशारा करती हैं कि कोविड-19 होने का ख़तरा डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा नहीं होता है। अलबत्ता अगर ये बीमारी हो जाए तो फिर ये बीमारी डायबिटीज़ वालों में ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो ज़्यादा सीवियर प्रेजेंटेशन होता है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को, और उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है और मौत का ख़तरा भी बाकी लोगों से 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन जो स्टडीज़ की गई इसमें यह भी पाया गया कि जिन लोगों की शुगर अच्छे से कंट्रोल थी उसमें मरने का ख़तरा जो है ऑलमोस्ट उतना ही था जितना कि बाकी बगैर डायबिटीज़ वाले लोगों को। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें क्या परहेज़ करना चाहिए, शुगर वाले मरीज़ों को क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। तो शुगर वाले मरीज़ों को कोई अलग से परहेज़ नहीं है, जो परहेज़ बाकी लोगों को, जो प्रिकॉशंस बाकी लोगों को करना है, सेम परहेज़ शुगर वालों को भी करना है। अलबत्ता शुगर वालों को यह ख्याल करना है कि भाई बाहर ना निकलें जब तक कि शदीद ज़रूरत ना हो कोई। शुगर वाले मरीज़, ख़ासकर जो लोग बूढ़े हैं और जिनकी वज़न ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा सीवियर बीमारी होने का ख़तरा होता है। तो जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो अपने घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर ही रहें। और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और जो फिज़िकल डिस्टेंस होती है उसको थोड़ा मेंटेन रखें। खांसी बलगम वगैरह अगर आए तो आदमी जो है मुंह को ढाँक ले, चाहे कपड़े से ढाके या टिश्यू से ढाके, या कुछ ना मिले तो कम से कम अपने कोहनी वगैरह से ही ढाँक लेना चाहिए। और बार बार अपने हाथों को, जब भी कोई चीज़ बाहर से आए, कहीं से आए, तो बार बार अपने हाथों को जो है इंसान को धोते रहना चाहिए। जो नॉर्मल सोप होता है उससे बहुत अच्छी तरीके से हाथ साफ हो जाता है। 20 सेकंड के लिए जैसे बताते हैं वैसे आदमी को अपने हाथ फ्रीक्वेंटली धोते रहना चाहिए। और शुगर वाले मरीजों को इस लॉकडाउन में ज़रूरी है कि और ज़्यादा परहेज से रहें, खाने पीने में बदएहतियाती ना करें। जिन चीज़ों में शुगर ज़्यादा होता है, चीनी होती है, उन चीज़ों से आदमी को बचना चाहिए। एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। हेल्दी बैलेंस्ड डाइट का मतलब ये है कि हमारे जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन होना चाहिए, और साथ में उसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो भी होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जैसे खाना खाते हैं उसमें अनाज वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ना हो। अनाज जिन चीज़ों में होता है जैसे कि रोटी है, चावल है और नमकीन है, इस टाइप की चीज़ें जो हम खाते हैं उसमें ये चीज़ें जो है आदमी को ज़्यादा मकदार में नहीं लेना चाहिए। और रोज़ अपने खाने में जो है ताज़ा सब्ज़ी, हरी सब्जियां इसको लेना चाहिए। और डायबिटीज़ वाले मरीजों को फल भी खाने चाहिए। जो मौसम के फल हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में, जैसे कि हम कहते हैं एक सर्विंग्स कहते हैं कि 60 से 70 ग्राम एक टाइम में कोई सा भी फल जो है आप ले सकते हैं, और दिन में 2-3 सर्विंग ऐसी आप ले सकते हैं। और प्रोटीन्स के लिए जो है आदमी को
دال میں پروٹین ہوتا ہے، پنیر میں پروٹین ہوتا ہے، سویابین میں ہوتا ہے، گوشت میں ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی آدمی کو، انڈے میں ہوتا ہے پروٹین، یہ ساری چیزیں انسان کو لینی چاہیے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں تیل کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ نہیں، تیل چربی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فیٹس اگر زیادہ لیں گے تو اس سے پھر جو ہے آدمی کو پرابلم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسرسائز کا کیا کریں۔ ایکسرسائز جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ آپ کی شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے، آپ کے مینٹل ہیلتھ کو بھی بیٹر بناتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے آپ کی امیونٹی کو بھی بوسٹ کرتا ہے۔ تو جو بھی ایکسرسائز پاسبل ہو، انڈور پاسبل ہو یا آؤٹ ڈور پاسبل ہو، کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے ایکسرسائز ہے، یوگ ہے، یہ آدمی کو کرنا چاہیے، اور اس میں کمی کوتاہی نہ کرے، کیونکہ اگر پہلے آدمی ایکسرسائز کرتا تھا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیا جائے گا تو اس کے شوگر کے بڑھنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ اور ویسے ہی جو دوائیاں آپ کو ڈاکٹرز نے پرسکرائب کی ہیں، ان دوائیوں کو اپنے ٹائم سے لینا چاہیے، اپنی مرضی سے اس کو کم یا زیادہ نہ کریں۔ اور سپلائی چین میں تھوڑی بہت پرابلم ہے، دوائیاں کبھی کبھی آسانی سے نہیں ملتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ڈائبٹیز والے مریضوں کو اپنے دوائیوں کا تھوڑا ایکسٹرا اسٹاک رکھیں تاکہ دوائی ڈسکنٹینیو نہ ہو پائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو صحت ہے اس کا خیال رکھیں کہ اپنے اوپر تھوڑا دھیان رکھیں کہ شوگر زیادہ یا کم ہونے کی جو علامت ہوتی ہے وہ تو ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے۔ شوگر جیسے کم ہوتی ہے تو انسان کو جو ہے اس کو ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں، ایسی صورت میں انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، پسینے آنے لگتے ہیں، تھرتھراہٹ ہوتی ہے، یا اگر سونے کے دوران اگر جو ہے ہائپوگلائسیمیا ہو گیا تو اس میں انسان کو خواب آ سکتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ تو اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہے تو اس میں بہتر ہے کہ آدمی اپنی شوگر جو ہے فریکوینٹلی چیک کرے، اور اگر شوگر ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ ڈھونڈنے کی بھی کس وجہ سے کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں شوگر کم ہونے کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی اپنا کھانا ٹائم پہ نہیں کھاتا ہے یا کھانا کم کھاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی وجہ ہے تو پہلے اپنے کھانے کے طریقے کو، اپنے ٹائم کو، اور جو کوانٹٹی کھا رہا ہے اس کو ٹھیک کرے۔ لیکن اگر کھانا صحیح طریقے سے کھا رہا ہے اس کے بعد بھی شوگر کم ہو رہی ہے تو ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے فوراً کنسلٹ کرے اور اپنی دوائی کو پھر اس کے حساب سے ماڈیفائی کرائے۔ اور جو شوگر زیادہ ہونا جس کو کہ ہم ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں، ویسی کنڈیشن میں آدمی کو پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، گلا سوکھنے لگتا ہے، خشک ہونے لگتا ہے، وزن کم ہو سکتا ہے، بھوک زیادہ لگ سکتی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں بھی آدمی اپنے شوگر کو چیک کرے اور پھر جو ہے اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے، ان سے مل کے جیسے بھی پاسبل ہو اپنے دوائیوں کو ماڈیفائی کرے اپنے حساب سے۔ اور جب بھی کسی ڈاکٹر کو فون کریں تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے جو آپ کی دوائیاں ہیں اس کا نام آپ نوٹ کر لیں، اور جو بھی ریسنٹ حال فی الحال کی جو شوگر کی رپورٹس ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ ڈاکٹر کو جب آپ فون کریں گے تو سب سے پہلی چیز وہ یہی پوچھیں گے کہ دوائیاں کیا کھا رہے ہیں اور شوگرز کیسی چل رہی ہیں۔ اور اگر شوگر والے مریضوں کو کھانسی ہوتا ہے، زکام، نزلہ ہے، بخار ہے، اور خاص طور پہ اگر سانس پھول رہی تو ایسی کنڈیشن میں فوراً جو ہے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور ان سے صلاح لیں۔ اور اگر ان باتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو ہم بچائے رکھیں گے اور جلد ہی انشاءاللہ اس بیماری سے ہم لوگ اوورکم کریں گے۔ تو لیجیے صاحبو، یقیناً ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم باتیں بتائی ہیں، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، خوش رہیے اور ہمیشہ خوشگوار زندگی، صحت مند زندگی گزاریے۔ بہت سی چیزیں ہمارے دل میں ویسے ہی وہم کر جاتی ہیں جبکہ ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ یہی باتیں کچھ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتائی ہیں، آپ ان باتوں کا خیال کیجیے، ان باتوں کو ذہن میں رکھیے، اور جو احتیاطی اقدامات بتائے گئے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے اور ان پر عمل کیجیے تاکہ آپ صحت مند اور خوشگوار زندگی جی سکیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی جینے میں یا ایک خوشگوار سوچ لانے میں شاعری کا بہت اہم کردار ہے۔ شاعری جو ہمارے دل اور ہمارے ذہن سے نکلی ہوئی آواز ہے، وہ آواز جو ہمیں متعارف کراتی ہے کہ زمانے کی سچائیاں کیا ہیں، ہمارے آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہم کس طرح اپنی سوچ کو ایک مثبت رویہ دے سکتے ہیں۔ فی الحال تو کلام شاعر کے تحت پیش ہے جناب شاہد انور کا کلام۔ ناظرین آداب، غالب کی زمین میں چند اشعار سماعت فرمائیے گا، مطلب پہ حاضر کرتا ہوں۔ لوگ ملتے ہیں بچاتے ہوئے داماں مجھ سے، لوگ ملتے ہیں بچاتے ہوئے داماں مجھ سے،
لوگ ملتے ہیں بچاتے ہوئے داماں مجھ سے، جانے کیا بات ہے رہتے ہیں گریزاں مجھ سے، جانے کیا بات ہے رہتے ہیں گریزاں مجھ سے۔ اور اس نے مطلع سماعت فرمائیے گا۔ میر و غالب کا ہے آباد دبستان مجھ سے، میر و غالب کا ہے آباد دبستان مجھ سے، ہلکا ہلکا ہے مگر ہے تو چراغاں مجھ سے، ہلکا ہلکا ہے مگر ہے تو چراغاں مجھ سے، چھین سکتے ہو میرے ہاتھ سے شمشیر و سنا، چھین سکتے ہو میرے ہاتھ سے شمشیر و سنا، پر یہ مقتل کے ہیں سب نقش و نگاراں مجھ سے، چھین سکتے ہو میرے ہاتھ سے شمشیر و سنا، پر یہ مقتل کے ہیں سب نقش و نگاراں مجھ سے، ایک ایک بیل کو سینچا ہے لہو سے اپنے، ایک ایک بیل کو سینچا ہے لہو سے اپنے، متفق ہو نہ ہو یاران گلستان مجھ سے، ایک ایک بیل کو سینچا ہے لہو سے اپنے، متفق ہو نہ ہو یاران گلستان مجھ سے۔ اور غزل کے مزاج کے حوالے سے شعر سماعت فرمائیے گا۔ تیرے خوابوں کو خیالوں میں سجا لوں پھر سے، تیرے خوابوں کو خیالوں میں سجا لوں پھر سے، کچھ توقع تو رکھا کر دل ناداں مجھ سے، تیرے خوابوں کو خیالوں میں سجا لوں پھر سے، کچھ توقع تو رکھا کر دل ناداں مجھ سے۔ اور مقطع حاضر کرتا ہوں کہ میرے دامن میں تو وحشت ہے جنوں ہے شاہد، میرے دامن میں تو وحشت ہے جنوں ہے شاہد، کیا سنور سکتی ہے تقدیر بیاباں مجھ سے، میرے دامن میں تو وحشت ہے جنوں ہے شاہد، کیا سنور سکتی ہے تقدیر بیاباں مجھ سے، میر و غالب کا ہے آباد دبستان مجھ سے، ہلکا ہلکا ہے مگر ہے تو چراغاں مجھ سے۔ بہت شکریہ صاحبو، ابتدا میں ہم بات کر رہے تھے گیو اینڈ ٹیک کی، یعنی آپ جو کچھ دیں گے اس کا بدلہ کہیں نہ کہیں آپ کو اسی صورت میں ملے گا ضرور۔ آج ہمارے ساتھ ایک معلمہ موجود ہیں جو بڑی معروف شخصیت ہیں، مصنفہ ہیں، ادیبہ ہیں اور استاد ہیں۔ یقین کیجیے کہ ان کی کتابیں پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی تخلیقات کو عوام کے لیے وقف کیا ہے، کس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں اپنی تخلیقات میں، اور کس طرح انہوں نے ان کتابوں کو جن پر ان کو کئی ایوارڈز بھی ملے ہیں وہ ہمارے سامنے لائی ہیں۔ وہ تخلیقات قابل غور ہیں۔ فی الحال تو آئیے سنیں محترمہ نوشاد بیگم صاحبہ سے کہ کس موضوع پر وہ اظہار خیال کر رہی ہیں۔ ان کا کچھ آج کا جو اظہار خیال کا موضوع ہے وہ وہی ہے
कि गिव एंड टेक, जो आप देंगे वही आपको हासिल होगा। है, मैं हूँ सैयदा नौशाद बेगम। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन और नाज़रीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की नशरियात में। हमारी तमाम ज़रूरतें मुकम्मल करने के लिए कुदरत का वादा है, लेकिन इंसानी ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती, वो लामहदूद होती है। कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। हर ख्वाहिश बंदे की अल्लाह मुकम्मल नहीं करता। कुदरत का ये उसूल है, जो हम दूसरों को देते हैं वो कई गुना बढ़कर हमारी तरफ वापस आता है। इसलिए देने की शुरुआत हमारी जानिब से होनी चाहिए और दी हुई चीज़ कभी वापस मिलने की उम्मीद न रखें। इसे हम बेलौस खिदमत भी कहते हैं और कुर्बानी या ईसार। कभी अपना रिटर्न्स नहीं मांगती। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली एक कहानी है। एक छोटा लड़का घर घर जाकर कपड़े फरोख्त करता और उस आमदनी पर वो अपने तालीम के अखराजात चलाता। एक रोज़ इसी तरह कपड़े बेचते हुए उसके जहन में ये बात आई कि मेरे जेब में सिर्फ 10 रुपये है और मुझे भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई है। ऐसा करता हूँ, अगले घर में जाकर कुछ खाने के लिए मांग लेता हूँ। अगले घर का दरवाज़ा एक खूबसूरत खातून ने खोला। उसे देखकर लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई कि खाना मांगे। कुछ खाना मांगने की बजाय उसने एक गिलास पानी मांग लिया। लड़का बहुत ज़्यादा भूखा है, ये बात उस खातून ने महसूस की, इसलिए उसने पानी की बजाय दूध का एक गिलास उसको दिया। लड़के ने बड़े इत्मीनान से दूध का गिलास पीकर ख़त्म कर दिया और खातून से पूछा, मुझे इस दूध के बदले कितने पैसे देने होंगे? तो खातून ने कहा, नहीं नहीं, इसके बदले मुझे कुछ नहीं देना है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि अगर किसी के साथ अगर हम सिला रहमी करते हैं तो उसका मुतबादिल नहीं लेना चाहिए। तब लड़के ने कहा, फिर तो मैं आपका दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूँ, मैं सचमुच आपका एहसानमंद हूँ। लड़के ने जब घर छोड़ा तब उसकी जिस्मानी थकावट दूर हो चुकी थी, उसे बड़ी ताजगी महसूस हो रही थी और खुदा पर जो उसका एतमाद कम हो चुका था वो फिर से मजबूत हो गया। चंद बरसों बाद वो खातून एक खतरनाक मर्ज का शिकार हो गई। डॉक्टर उसकी बीमारी तशखीस न कर पाए और उन्होंने मशवरा दिया कि बड़े शहरों में जांच करने की मशीनें होती हैं, आपकी बीमारी की जांच वहां हो जाएगी। अब जिस शहर के हॉस्पिटल में वो खातून दाखिल हुई, उसी हॉस्पिटल में एक माहिर डॉक्टर था। डॉक्टर ने जब उस खातून के गांव का नाम सुना तो उन्हें अपना माजी याद आ गया और उनके दिल में एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। उस याद के आते ही उनकी आंखों में एक चमक आई और वो फौरन उस खातून के कमरे में गई। उन्होंने एक लम्हे में उस खातून को पहचान लिया और अपने कैबिन में आए और दिल में सोच लिया कि अपनी मुकम्मल काबिलियत को इस्तेमाल करके इस मौसिन को बचाना है। उस रोज़ के बाद डॉक्टर साहब ने ज़ाती तौर पर इलाज में दिलचस्पी ली और ज़बरदस्त कोशिश और अपनी तमाम तर मेहनत को इस्तेमाल में लाकर उस खातून की बीमारी को ठीक करने में कामयाब हो गए। अब उस खातून के डिस्चार्ज का दिन आ पहुंचा तो उन्होंने अपने मातहत से कहा कि इस खातून का बिल मेरे कैबिन में भेज दिया जाए। जब बिल डॉक्टर के पास आया तो एक लम्हे के लिए वो उसे देखते रहे और आखिर में उस पर्ची पर कुछ लिखा और उस खातून की तरफ रवाना कर दिया। थरथराते और कांपते हाथों से उस खातून ने बिल का लिफाफा खोला। वो सोच रही थी कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी भर की कमाई भी लगा दूं, तब भी शायद ये बिल का पैसा मैं अदा कर सकूंगी या नहीं। ये खौफ उनके चेहरे से साफ आया हो रहा था।
डरते हुए दिल से उसने वो लिफाफा खोला, उस बिल पर लिखा हुआ मजमून पढ़ा और चौंक गई। लिखा था, दूध के मुकम्मल भरे हुए गिलास के एवज इस बिल की रकम मुझे मिल चुकी है, और उसके नीचे डॉक्टर की दस्तखत। खातून की आंखें अश्कबार हो गई और उसके दिल से ये अल्फाज निकले कि या खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तेरी तरह तेरे बंदों के हाथ और दिल भी रहम दिली के जज्बात से भरे हुए हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है, पानी में डाली हुई रोटी दोबारा हमारी तरफ ही लौट कर आती है। हमारे हाथों से कुछ अच्छे काम और बेलौस खिदमत भी होना चाहिए। अगर हमारे अच्छे काम का बदला नहीं भी मिला, तब भी हमारे आसपास के माहौल में हमें एक पॉजिटिव तब्दीली यकीनन दिखाई देगी, और उसके लिए खुदा ने हर इंसान को ये ज़िंदगी दी है कि नेक काम करो और फल की आस न रखो। इंसानियत का मजहब ही सबसे बड़ा मजहब है, जहाँ भर में वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, जहाँ भर में वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, दिलों में हौसले जो सीनों में ईमान रखते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। दोस्तों, आज के दौर में सबसे ज्यादा उनका शय जो है वो है वक्त। कहते हैं कि वक्त इतनी तेजी के साथ निकल जाता है, एहसास ही नहीं होता। हम भी आज के प्रोग्राम का अच्छा खासा अपना सफर तय कर चुके हैं। जाहिर है कि यही बात अदब में भी दराई है कि वक्त की तंगी के बाइस पहले तवील कहानियां होती थी, फिर अफसाने आए, उसके बाद अफसानचे आ गए जो बहुत ही मुख्तसर होते हैं। आज अपना एक अफसानचा लेकर हाजिर हैं हमारे साथ जनाब हसनैन साकिब साहब। आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ख़ान हसनैन आकिब, महाराष्ट्र से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं इस रेडियो प्रोग्राम के लिए अपना एक अफसानचा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अफसानचे का उन्वान है अलार्म। माजिद एक तवील मुद्दत से बेरोज़गार था। इस दफ्तर से उस दफ्तर के चक्कर काटते काटते उसकी जूतियाँ घिस गई थीं। तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेरोज़गार होना इस मुल्क में कोई नई बात नहीं थी। एक दिन परेशान होकर वो एक मौलवी साहब से मिला। मौलवी साहब ने उसे एक निहायत आसान और कारगर वजीफ़ा बताया और कहा कि मियाँ, ये वजीफ़ा अगर तुम फजर की अज़ान और नमाज के दरमियानी वक्त में 11 दिन तक मुसलसल पढ़ोगे तो 12वें दिन इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए मुलाजमत का इंतज़ाम हो जाएगा और रोज़ी के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर रोज़ी बांटने वाले फ़रिश्ते उतरते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि है कोई जो रोज़ी हासिल करे। माजिद ने पक्का इरादा कर लिया कि वो मौलवी साहब की हिदायत पर ज़रूर अमल करेगा। उसने बड़े एहतमाम के साथ घड़ी का अलार्म फजर की अज़ान के वक्त के साथ सेट कर दिया। फिर ये सोचकर कि क्या पता ये अलार्म बजे ना बजे, उसने अपने मोबाइल का अलार्म भी उस वक्त के साथ सेट कर दिया। 1 से भले 2। फिर वो हस्ब आदत देर रात तक मोबाइल फ़ोन के साथ वक्त गुजार कर इत्मीनान से सो गया। अगली सुबह अलार्म अपने वक्त पर बड़ी ज़ोरदार आवाज़ के साथ बजा। उससे अगली सुबह भी, उससे अगली सुबह भी, फिर उससे अगली सुबह भी। 11 रोज़ तक अलार्म यूं ही बजता रहा और 11 रोज़ तक माजिद अपने मामूल के वक्त पर नींद से बेदार होता रहा, यानी सुबह 10 बजे। तमाम सुनने वालों को सबिहा का पुरखलूस आदाब। एक बार फिर से हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। वैसे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे बात की थी, कुछ अपडेट आप तक पहुँचाए थे मुल्क में और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। कुछ काम की बातें पूरे प्रोग्राम में हमारे होती ही हैं और ये प्रोग्राम हम इसीलिए लेकर भी आते हैं कि आप सबको मालूमात भी मिले,
कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर सकें, और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी हो जो आपके काम आ सके, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी हो। अब जहाँ तक बात है, डॉक्टर साहब बहुत कुछ बताते हैं, हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट इसीलिए होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी सेहत के तई तो बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत बेदार भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों के बारे में अगर बात करें तो बच्चों के खाने पीने का, उनकी सेहत का ख्याल रखते तो हैं हम, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उनके अंदर पनपने लगती हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, वो हम जान नहीं पाते हैं। अब जैसे कि अभी मैं कुछ मैगज़ीन्स पढ़ रही थी तो एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट नज़र से गुजरी कि हमारे नन्हे बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर का जो मामला है, ये जो परेशानी है, वो पनपने लगा है। एक रिपोर्ट जिसको मैंने पढ़ा वो ये बताती है कि हिंदुस्तान में हर 5 में से एक शख्स जो है हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी से जूझ रहा है। और इसी रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बताया भी गया है कि कम उम्र में हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में आ रहे हैं हिंदुस्तान के बच्चे भी। इतना ही नहीं बल्कि आजकल का जो माहौल है, अनहेल्दी एक रूटीन्स बने हुए हैं, तो बच्चों में भी ये तमाम की तमाम परेशानियां आ रही हैं। ख़ास तौर पर 13 से 17 साल की उम्र के दौरान के बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर का मामला देखने में आया है। अब बच्चों में मिलने वाले ये जो हाई ब्लड प्रेशर के मामले हैं, इनमें क्या होता है कि पता है जल्दी से ना आप समझ नहीं पाते, क्योंकि जो अलामात हैं वो जल्दी सामने नहीं आ पाती हैं। यानी ज़्यादातर जो केसेस आए हैं उनमें यही पाया गया है कि सामने नहीं आया हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन जब जांच की गई, सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई, तब पता चला कि उनको ब्लड प्रेशर की परेशानी इतनी सी उम्र में होने लगी है। अब अलामात दूसरी तरह की हैं, जैसे थोड़ा सा काम करके ही हाँफने लगते हैं, जल्दी से थक जाते हैं, खेलों में ज़्यादा खेल नहीं पाते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा वज़न होता है उनका, मोटापा आने लगता है यानी, और जल्दी से उन्हें पसीना आने लगता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन असल में ये हाई ब्लड प्रेशर की अलामात हो सकती हैं उन बच्चों में। इसके अलावा आंखों की रोशनी का कम हो जाना, लगातार उनके सर में दर्द रहना भी हाई ब्लड प्रेशर की अलामात हो सकती हैं, ये रिपोर्ट बताती है। वहीं अगर बच्चा नाक बंद करने की बार बार बंद हो जाने की शिकायत करता है, या फिर उसे चक्कर आते हैं, या फिर उल्टी आने की शिकायत करता है, तो इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज ना कीजिए। बच्चों में हाई बीपी की जो रीज़न्स हैं, कुछ मामलों में दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना भी है, कई बार छाती में दर्द होता है, पेट में दर्द है, सांस लेने में भी उन्हें परेशानी हो सकती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको इग्नोर ना करें और परेशान भी ना हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा उनका ख्याल रखा जाए और एक्सपर्ट्स को दिखा लिया जाए तो ये परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। ख़ास तौर पर ये ध्यान रखिए कि हर कोई चाहता है कि बच्चे हमारे तंदुरुस्त और तवाना हों। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा हेल्दी नज़र आता है, देखने में तंदुरुस्त और तवाना है, तो वो सेहतमंद भी है। मोटापा किसी भी सूरत में सेहत की अलामत नहीं है, बच्चों में भी नहीं है। उमूमन देखा जाता है ना कि बच्चों का अगर वज़न थोड़ा लगता है कि बहुत स्लिम एंड ट्रिम है, तो हर कोई उसको ये टोकता भी है कि भाई इतना कमज़ोर सा बच्चा, उसके खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं सभी लोग। तो इन चीज़ों से आप परेशान ना हों। अच्छा है स्लिम एंड ट्रिम है तो बहुत सी परेशानियों से बचा हुआ है, लेकिन हाँ अंडर वेट ना हो, ये भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें कि भाई मोटापा अच्छी चीज़ नहीं है। तो इन थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि मैं हूँ, आप हैं, बुजुर्गवार हैं घर के, जवान पीढ़ी के साथ साथ और छोटे बच्चे भी हैं, तो सभी की सेहत लाजिम है। तो ये थी कुछ बातें आप सबके साथ कि आप सबसे तो बातें हो जाती हैं, और जो हमारे छोटे छोटे स्वीट से बच्चे भी हैं, हर फैमिली में है कोई ना कोई बच्चा, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और मैं सबिहा अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। और देखिए बातें करते करते प्रोग्राम का भी वक्त हो गया है, तो इंशाअल्लाह फिर जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफिज़।